Hello, NEET aspirants. Today we are going to start a new chapter, Morphology of Flowering Plants, and we are starting with root and its modifications. In this lecture 1, I am going to discuss various types of roots and root modifications. So let's start. What is root? In simple words, we think it is underground, non-green part of a plant, right? कि अंडरग्राउंड पार्ट है, नॉन ग्रीन पार्ट है, which is positively geotropic and negatively phototropic. Move away from light towards gravity. So positively geotropic but negatively phototropic part है, and it forms the underground part of plant axis. Roots are without nodes. Nodes are absent in roots. Neither they have any type of bud or leaves. So they lack nodes, buds and leaves. If a part of the plant develops from the interior of the parent root, then it is known as endogenous. So endogenous origin है. अगर हम इसको कंपेयर करेंगे स्टेम के साथ तो स्टेम आर एक्सोजीनस. एंडोजीनस ओरिजिन है एंड जनरली फ्रॉम पेरिसाइकिल इट डेवलप्स. So these are the main points what we think about root. जब भी root word हमारे दिमाग में आएगा तो हमें ये चीजें ध्यान में रखनी. Now you know what is morphology. Study of external features, external form of an organism is known as morphology. Angiosperm, or we call flowering plants, they have two type of parts: vegetative parts and reproductive parts. Vegetative parts include root, stem and leaf, while reproductive parts are flower, fruit and seed. So today we are discussing this first vegetative part, which is root. Underground part which forms the root system. It develops from radicle of the embryo. अगर हम बात करें, suppose this is a seed, this is embryonal axis. तो embryonal axis के ऊपर का जो पार्ट है, it develops into plumule, जो कि शूट सिस्टम बना देगा. एंड इसके नीचे का जो पार्ट है, it forms radicle or forms root system. So ये एपिकोटाइल हो गया and this is hypocotyle. Epicotyle and hypocotyle. So this is hypocotyle part. और जब जर्मिनेशन होता है तो इन्हीं के बेसिस पे होता है. अगर शूट सिस्टम पहले डेवलप हो जाता है तो एपिजियल जर्मिनेशन उसको हम कहते हैं, और अगर ये वाला पार्ट पहले डेवलप हो जाता है तो उसको हाइपोजियल जर्मिनेशन कहा जाएगा. Root system is of three types: tap root system,
adventitious root system and fibrous root system. So one by one we'll discuss all these three types. So tap root system, as you can see in this diagram, there is a one main root जिसको हम क्या कहते हैं, primary root. One main root is there, and from that main root side or further branching takes place. So it gives rise to secondary or even tertiary branches, secondary or tertiary roots. So tap roots are commonly found in diploid plants. प्राइमरी रूट डायरेक्ट इलोंगेशन है रेडिकल का. ये मस्टर्ड आप देख रहे हो, मस्टर्ड प्लांट का पिक्चर आपको दिख रहा है. सो टैप रूट डाइकोट्स का फीचर है जनरली, एंड इट गिव राइज टू एक्सटेंसिव नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स. रूटलेट्स जो है ये, these rootlets, they are ultimate root branches and they have root hairs. और root hairs का फंक्शन आपको पता है, root hairs helps in absorption. So further अगर हम बात करें टैप रूट सिस्टम को दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, डीप फीडर एंड सरफेस फीडर्स. डीप फीडर एंड सरफेस फीडर्स. डीप फीडर जिसका पेनेट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट. सो ट्रीज में जो मिलेगा दैट इज डीप फीडर. सरफेस फीडर जो कि स्प्रेड करेगा, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करता है. तो उसमें शॉर्ट टैप रूट होगी, सेकेंडरी रूट्स भी हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करेंगी, राइट. सो इट इज ऑल्सो नोन एज साइमोस टाइप. तो ये रेसिमोस हो गया. डीप फीडर को हम रेसिमोस टाइप कह सकते हैं और सरफेस फीडर को हम साइमोस टाइप भी कह सकते हैं. सो रेसिमोस एंड साइमोस टाइप. साइमोस सरफेस फीडर है और डीप रेसिमोस टाइप. Second one is fibrous root system. Fibers, as you can see, there is a one point, and from that one point a large number of roots are arising. So these type of roots arise from base of the stem. Stem का base है, and all the roots arise from a single point. So such type of root system is known as fibrous root system. Monocots की speciality है, taproot, dicot, यहाँ पे monocot, and most common example is wheat, right. And इन दोनों के बीच का जो पार्ट रहेगा that is known as, उसको हम क्या कहते हैं, तीसरा टाइप क्या था हमारा, adventitious roots. फाइब्रस रूट्स, मोनोकोट्स, टैप रूट, डाइकोट्स की स्पेशलिटी होगी. एडवेंटिशियस जो है which develops from any part of the plant other than radical, ये वाले एडवेंटिशियस. रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से अगर वो डेवलप हो जाती हैं देन दे आर नोन एज एडवेंटिशियस. प्रोप रूट्स देखिए होंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे, बनियन ट्री में होती है, ग्रासेस हैं, मोन्स्ट्रिया है. दीज आर कॉमन एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स. And all these types of root shows various modifications. Modification हो सकता है स्टोरेज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, या किसी एक्सेसरी फंक्शन के लिए. So all these modifications also we'll discuss. Now structure of a root. A typical root has these
4 parts: root cap, meristematic region, zone of elongation, and zone of maturation. So first part, this is tip part, you can say tip part of the root, which is known as root cap. It is thimble shaped. एनसीईआरटी का डायग्राम है या कैप लाइक हो सकती है एंड ऑल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस. Parenchymatous cells are found in the root cap. मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है जो रूट मेरिस्टम को कवर करने का काम करती है. रूट कैप की सेल्स में स्टार्च ग्रेन्स होते हैं. दे कंटेन स्टार्च ग्रेन्स. अब स्टार्च ग्रेन का क्या काम होगा? स्टोरेज. अब रूट कैप का काम है पेनिट्रेशन द रूट्स. तो जो रूट टिप है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. रूट मेरिस्टम को जो सॉइल में पेनिट्रेशन होगा तो वो डैमेज ना हो, इसलिए रूट कैप सबसे पहले कॉन्टेक्ट में आता है. तो जो आउटर सेल्स हैं रूट कैप की कंटिन्यूअसली शेड ऑफ होती रहती है, पील ऑफ होती रहती है, एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स. इसलिए ये सेल्स म्यूसिलेज भी सिक्रेट करते हैं. रूट कैप सेल्स सिक्रेट म्यूसिलेज. तो म्यूसिलेज सिक्रेशन हो गया और प्रोटेक्शन, दोनों काम ये करने में हेल्प करती है रूट कैप की सेल्स. अब कुछ प्लांट्स में मल्टीपल रूट कैप्स मिलती है. जो स्टिल्ट रूट्स हैं स्क्रू पाइन की, पेंडेनस, इन पेंडेनस मल्टीपल रूट कैप्स आर फाउंड. तो बहुत सारी शीत होती है उसके चारों तरफ. सो वो शेड ऑफ नहीं होती, पीलिंग नहीं होती उस केस में. और एक्वेटिक प्लांट में, हाइड्रोफाइट्स में, दिस रूट कैप इज रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट्स. रूट कैप और रूट पॉकेट में मेन डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पे देख रहे थे शेड ऑफ होने के बाद नई सेल्स बन रही थी, बट रूट पॉकेट रीजनरेट नहीं करता. Structurally similar to root cap, but they cannot regenerate. Example की बात करें, root cap is found in Pistia, Lemna. Aquatic plants, hydrophytes में ये commonly मिलते हैं. So simple words में tip portion जो protection provide करें. Detail we already discussed. Now second point is just above the root cap, few millimeter long. बहुत छोटा सा रीजन होता है. डेंस साइटोप्लाज्म एंड थिन वॉल्ड. क्यों? क्योंकि उनका काम क्या है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करना है. रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होंगी. सो सब टर्मिनल रीजन है ये. इट इज सब टर्मिनल पार्ट. टर्मिनल तो रूट कैप हो गया, सो इट इज सब टर्मिनल. एंड they undergo rapid division. तो it has to increase number of cells. इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? For growth. Main function is growth of the root. Third reason is zone of elongation. This part comparatively larger area है, 4 to 8 mm long, just above the जो मेरिस्टेमेटिक जोन. अब सेल्स स्पेशलाइज्ड होने लगती है तो दे लूज द पावर ऑफ सेल डिवीजन. सो जस्ट इलोंगेशन, जस्ट एनलार्जमेंट होगा सेल्स का, तो इसका फंक्शन क्या हो गया? लेंथ को इंक्रीज करना. वहां पे नंबर बढ़ रहा था, यहाँ पे लेंथ बढ़ जाती है.
एंड लास्ट वन इज मैचुरेशन जोन। जो लास्ट पार्ट है, सबसे ऊपर का जो पार्ट है, दैट इज जोन ऑफ मैचुरेशन या रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहां पे सारी की सारी सेल्स डिफरेंशिएटेड है एंड दिस इज द जो यहां से रूट एयर्स अराइज होते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस में आता है रूट एयर्स आर यूनिसेलुलर। जो स्टेम एयर्स होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स और रूट एयर्स helps in absorption of water and minerals from the soil. They increases the surface area for absorption, right? So these are the different zones found in a root. These are two types of root, tap roots and fibrous roots. As you can see difference, this is epicotyle region. So epicotyle region is giving rise to मेन रूट और मेन रूट से साइड वाइज सेकेंडरी या टर्सरी ब्रांचेस निकल रही है। यहाँ पे जो बेस है स्टेम का, वहां से एक टफ्ट अराइज हो रहा है रूट्स का। So tap root and fibrous roots. Now modification of stem. Sorry, modification of roots. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रूट्स अलग अलग फंक्शन के लिए मॉडिफाई होती है, बट हम पहले जो एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन दी हुई है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला जो फंक्शन है दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। इसमें स्टोरेज के लिए हो गया, सपोर्ट के लिए हो गया और रेस्पिरेशन के लिए हो गया। Pneumatophores are for respiration. Swollen roots फूड स्टोरेज के लिए, जिनको हम फ्लैशी टैप रूट्स भी कह देते हैं। फ्लैशी टैप रूट्स। सो ये टैप रूट की मॉडिफिकेशन है। इसमें स्टेम रिड्यूस हो जाता है, स्टेम रिड्यूस्ड है, डिस्कोइड टाइप का हो जाएगा एंड रूट्स जो हैं वो स्टोरेज का काम करेंगे। तो इसमें तीन कॉमन टाइप्स हैं, कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म एंड नेपिफॉर्म। कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म एंड नेपिफॉर्म। एग्जाम्पल से आपको एकदम समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हो। कोनिकल कैरेट, सीसी। कोनिकल कैरेट, रेडिश फ्यूजिफॉर्म, स्पिंडल शेप। So carrot, radish, right? तो फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेप्ड होती है, कोनिकल कोन लाइक हो जाएगी, इसी तरह का है, ये स्पिंडल शेप हो जाएंगी। एंड नेपिफॉर्म स्वोलन, टर्निप हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। So these are swollen roots for food storage, जहां पे स्टेम रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं, करना चाहें तो ट्यूबरस रूट, सॉरी हाँ यस, ट्यूबरस रूट्स भी होती है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलती है, जिनका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होगा, दे आर ट्यूबरस रूट्स। मिराबिलिस जलैपा, 4 o'clock प्लांट, इसका बेस्ट एग्जांपल है। Now these are diagrams. Now prop roots, these are for support. सपोर्ट के लिए होता है prop roots। बनियन ट्री सबसे कॉमन एग्जांपल है, मैंने आपको पहले भी बताया था। बनियन ट्री में इस तरह की रूट्स डेवलप होती है। These are for मैकेनिकल सपोर्ट, इनको प्रोप या पिलर रूट्स भी हम कह सकते हैं।
थिक पिलर लाइक होती है, और जैसे ही मॉइस्चर इनको मिलता है दे बिकम रेड कलर. दे ऑल्सो हैव रूट कैप्स ऑन देयर टिप्स, राइट. और सपोर्ट के लिए एक और एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं साथ में, जब हम मैकेनिकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो स्टिल्ट रूट्स, दे आर ऑल्सो शॉर्ट बट थिक. These type of roots, they are stilt roots. मेज प्लांट में स्टिल्ट रूट्स मिलती हैं. They also supportive in function. So प्रोप और पिलर दोनों सपोर्ट के लिए हो गया, और ये फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल एंड एपिफॉर्म, दे आर फॉर फूड स्टोरेज. नाउ न्यूमेटोफोर्स रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे. जो मार्शी एरियाज होते हैं वहां पे, बिकॉज जो सॉइल के पोर्स हैं दे गेट फिल्ड विद वाटर और मड, सो प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती, सो दे कम आउट ऑफ द ग्राउंड. एक शार्प पॉइंटेड इस तरह की स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में ये ऊपर आ जाते हैं, एंड दे आर नोन एज न्यूमेटोफोर्स टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. तो स्वैम्पी एरियाज में, राइजोफोरा जैसे प्लांट्स में, इस तरह की रूट्स न्यूमेटोफोर्स मिलती हैं फॉर रेस्पिरेशन. तो ये एसेसरी फंक्शन हो गया. अगर बाकी कुछ और मॉडिफिकेशंस की बात करूं, जहां पे रूट्स वाइटल फंक्शंस के लिए अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, ये तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. बाकी वाइटल फंक्शन में कैसे रूट्स हेल्प करती हैं. एसिमिलेटरी रूट्स, एसिमिलेटरी रूट्स, दे आर ग्रीन रूट्स. तो ग्रीन है तो ये इसका मतलब दे बिकम फोटोसिंथेटिक. दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रापा. आप सबने देखा होगा ट्रापा में फोटोसिंथेटिक होते हैं, जिसको वाटर, उसके अलावा वाटर चेस्टनट जिसको हम सिंगाड़ा कहते हैं, उसमें भी फोटोसिंथेटिक होता है. दे आर सबमर्ज्ड रूट्स, दे डेवलप फ्रॉम स्टेम नोड्स. स्टार्टिंग में जब हमने रूट की बात की थी तो हमने कहा था कि इसमें नोड्स नहीं होती, ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है, लेकिन एसिमिलेटेड रूट के केस में दोनों वायलेट हो गए. डेवलप फ्रॉम स्टेम नोड एंड ग्रीन ऑल्सो. टीनोस्पोरा में भी मिलती हैं इसी तरह की रूट्स, जिसको गिलोय कहते हैं, गुरचा. देन रूट्स कैन बी पैरासिटिक ऑल्सो, होस्टोरियल रूट्स और पैरासिटिक रूट्स. सकिंग रूट, सकर्स भी कहते हैं इनको, they are also known as sucking roots. कसकुटा का एग्जांपल अमरबेल, होस्ट से, होस्ट पे पूरी तरह डिपेंड करती है, होस्ट से न्यूट्रिशन लेती है, वहीं से एब्जॉर्प्शन होता है सारे न्यूट्रिएंट्स का, राइट. सोइल के साथ कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि उसको ना तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, वहां से ना मिनरल्स लेने हैं, ठीक है. वो पूरी तरह डिपेंड करती है हमने होस्ट प्लांट. So these are hosterial roots. Then there can be epiphytic roots also. Epiphyte आपको पता है जो किसी हार्ड सब्सट्रेटम के साथ अपने आप को अटैच करके रखे, that is epiphyte. So epiphytic roots भी उसी तरह का मॉडिफिकेशन एपिफाइट्स में मिलेंगी. सो इनको ऐसे जो प्लांट्स हैं जिनमें ये रूट्स डेवलप होती हैं, दिस इज फॉर शेल्टर एंड स्पेस, फॉर शेल्टर एंड स्पेस. तो इनको स्पेस रूट्स भी कहते हैं. एपिफाइटिक रूट्स आर आल्सो नोन एज स्पेस पैरासाइट्स और स्पेस पैरासिटिक रूट्स.
ये फिक्सेशन के लिए भी हो जाती है तो क्लिंगिंग हो जाएंगी, एब्जॉर्प्शन के लिए भी हो जाएंगी और हाइग्रोस्कोपिक भी हो जाएंगी. सो अकॉर्डिंग टू देयर नीड दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल इसका आप वेंडा लिख सकते हैं. वेंडा में इस तरह की रूट्स डेवलप होती हैं और बीच बीच में यहां पे इस तरह से एब्जॉर्बिंग रूट्स आ जाएंगे. राइट. कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स, जिनको आप फ्लोटिंग रूट्स भी कह सकते हो. ये श्रिंक भी हो जाती है, अपने टोटल जो लेंथ होगी उसका 60 to 70% ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स. एग्जाम्पल इज क्रोकस एंड फ्रेशिया. क्रोकस और यहां पे साइड वाइज में लॉन्ग कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स आर. दीज आर कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स. फ्लोटिंग रूट्स जैसा कि नाम वैसा ही काम. जोशिया में फ्लोटिंग रूट्स मिलती हैं जो फ्लोट ओवर वाटर सरफेस सो दैट उनमें रिप्रोडक्शन भी हो सके, वो डिफरेंट फंक्शन के लिए हेल्प कर देती है. नाउ रिप्रोडक्टिव रूट्स. रिप्रोडक्टिव रूट्स, व्हाट आर रिप्रोडक्टिव? सो जो फ्लैशी हो, एडवेंटिशियस बर्ड्स इनमें डेवलप हो, वो रूट्स रिप्रोडक्टिव रूट्स की तरह एक्ट कर सकती हैं कि आगे में जो बर्ड होगी उसे न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस. सो सच रूट्स आर नोन एज रिप्रोडक्टिव रूट्स. और आप सबने देखा है, खाया भी होगा, स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो में रिप्रोडक्टिव रूट्स मिलती है. राइट. सो दीज आर एसेसरी मॉडिफिकेशन. वाइटल फंक्शंस के लिए जो मॉडिफिकेशन है रूट्स की वो हमने डिस्कस की. Now, what are the major differences between tap and adventitious root system? Tap root system and adventitious root system. क्या मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों टाइप के रूट सिस्टम में? सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अभी तक आपको पता चल गया होगा, इट डेवलप फ्रॉम रेडिकल. राइट. जो एम्ब्रियो है उसके रेडिकल से डेवलप होगी. ये रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाती है, एनी पार्ट अदर देन रेडिकल. देन प्राइमरी रूट परसिस्टेंट होती है, उसी से सेकेंडरी और टर्सरी रूट अराइज करती है. प्राइमरी रूट परसिस्टेंट है इसमें, जबकि इस केस में जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होगी, वो रिप्लेस हो जाएगी. प्राइमरी रूट becomes short lived in case of adventitious roots. Then मेन रूट, हालांकि वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो मेन रूट होती है वो ज्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स. इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, डीप फीडर एंड सरफेस फीडर. दो टाइप इसमें हो सकती है, साइमोस एंड रेसिमोस. लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता. राइट. So these are the main point of differences between taproot and
एडवेंटिशियस रूट्स। अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें रूट्स ही नहीं होती, दे आर रूटलेस। कैन यू थिंक ऑफ any plant which is rootless? Rootless plants mainly aquatic होंगे, हाइड्रोफाइट्स होंगे, बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली इन वाटर, सो उनको रूट सिस्टम की बहुत कम जरूरत पड़ती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, राइट। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, यूट्रिकुलेरिया, वुल्फिया, राइट, और कुछ में ये सिर्फ बैलेंसिंग के लिए डेवलप होती है, जैसे पिस्टिया, हाइड्रिला, हाइड्राला हमें फिक्सेशन के लिए होती है। सो दीज आर रूटलेस प्लांट्स। नाउ रूट फंक्शंस। मेन फंक्शन सबको पता है, हमने अभी डिस्कस भी किया, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। इसके लिए रूट एयर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंकर प्रोवाइड करते हैं टू कीप देम फिक्स इन द सॉइल, स्टोरेज एंड फॉर्म प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, राइट। उसके अलावा बहुत सारी हमने रूट्स की मॉडिफिकेशन देखी जो डिफरेंट फंक्शन के लिए, चाहे वो न्यूमेटोफोर्स के फॉर्म में हो, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स हो, रिप्रोडक्टिव रूट्स हो, कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स हैं, सो दे परफॉर्म डिफरेंट वाइटल फंक्शंस एंड परफॉर्म और एंड अटेन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, right? So this is all about structure of roots and various types of root system and modification of roots found in plants. In next lesson, in next lecture, we'll discuss stem and its modification.